اور ویمنز پریمیئر لیگ میں رائل چیلنجرز بنگلور کو آخرکار ملی پہلی جیت، یو پی وارئرز کو 5 وکٹ سے دی شکست۔ آر سی بی کی جیت میں کنیکا آہوجا اور ریچا گھوش کا رہا بڑا رول۔ آداب ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ریشما۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں خبروں پر تفصیل سے۔ صدر دروپدی مرمو کیرل، تمل ناڈو اور لکشدیپ کے اپنے 6 روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر آج کوچی کا دورہ کریں گی۔ ملک کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ کیرل اور لکشدیپ کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ صدر آج دیسی ساخت کے طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت کا دورہ کریں گی، جسے کوچین شپ یارڈ میں بنایا جا رہا ہے، اور آئی این ایس دروناچاریہ کو پریزیڈنٹس کلر پیش کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل کولم میں ماتا امرتانندمئی مٹھ کا دورہ کریں گی۔ اسی دن وہ ترووننتپورم میں اپنے اعزاز میں منعقد کیے جانے والے ایک شہری استقبالیہ میں بھی شرکت کریں گی۔ 18 مارچ کو صدر جمہوریہ وویکانند میموریل اور تھرولور کے مجسمے پر خراج عقیدت بھی پیش کریں گی، اور کنیا کماری میں وویکانند کیندر کا دورہ کریں گی۔ اسی شام وہ کاورتی میں اپنے اعزاز میں منعقد ہونے والے شہری استقبالیہ میں بھی شرکت کے لیے پہنچیں گی۔ اگلے دن 19 مارچ کو صدر کاوارتی میں سیلف ہیلپ گروپوں کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ آج لوک سبھا میں قانون سازی کے متعدد کام فہرست بند ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج لوک سبھا میں جموں کشمیر پر ایشن نمبر 2 بل 2023 کو منظور کرنے کی تحریک پیش کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپروپریشن نمبر 2 بل 2023 کو دوبارہ قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کریں گی۔ آج راجیہ سبھا میں اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کی وزارت کے کام کاج پر بحث ہوگی۔ اس کے ساتھ کئی محکموں کی رپورٹ ایوان کے فلور پر پیش کی جائے گی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ اپنے محکمے کے حوالے سے پارلیمانی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ میں شامل سفارشات پر عمل آوری کی صورتحال پر بھی بیان دیں گے۔ اور G20 کے تحت بزنس 20 میٹنگ آج سے سکم کی راجدھانی گنگٹوک میں شروعات ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ کے دوران سکم کو نامیاتی کاشتکاری، سیاحت، دواسازی اور قابل تجدید توانائی کے میدان میں اپنی اقتصادی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا موقع ملے گا۔ شمال مشرق میں منعقد ہونے والی 4 کاروباری سربراہی کانفرنسوں میں سے یہ تیسری کانفرنس ہے۔ B20 سرکاری G20 ڈائیلاگ فورم ہے، جہاں دنیا کی کاروباری برادری اور متعلقہ ماہرین خیالات کا تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ B20 کانفرنس میں آرگینک فارمنگ پر خصوصی بحث کی جائے گی، جبکہ اسٹارٹ اپ 20 میٹنگ 18 اور 19 مارچ کو گنگٹوک میں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ آج بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کی ریلوے میں نوکری کے بدلے زمین گھپلے میں سی بی آئی کے سمن کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گی۔ تیجسوی نے اپنی عرضی میں کہا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیجسوی اس وقت نابالغ تھے جب ان کے والد لالو پرساد یادو یو پی اے حکومت میں وزیر ریلوے تھے۔ اس کے علاوہ تیجسوی نے دہلی میں بھی انکوائری کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سی بی آئی انکوائری کرنا چاہتی ہے تو وہ بہار میں بھی کر سکتی ہے۔ لاس اینجلس کے سابق میئر ایرک گارسیٹی بھارت میں امریکہ کے نئے سفیر ہوں گے۔ امریکی سینیٹ نے گارسیٹی کی نامزدگی کی توثیق کر دی ہے۔ بھارت میں امریکی سفیر کے طور پر ان کی نامزدگی کو سینیٹ میں 42 سے منظوری ملی ہے۔ بھارت میں امریکی سفیر کا عہدہ 2 سال سے زائد عرصے سے خالی پڑا تھا۔ ایرک کو صدر جو بائیڈن کا قریبی سمجھا جاتا ہے۔ 50 سالہ ایرک صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی انتخابی مہم کا حصہ تھے۔ ساتھ ہی ایرک گارسیٹی نے بھارت میں سفیر بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھارت میں اہم مفادات کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی خدمات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔
और अगर आप ऑनलाइन जाकर अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अब आप इसे मुफ्त में कर सकेंगे। UIDAI ने शहरियों को ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करने की सहूलत मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। डिजिटल इंडिया मुहिम के फरोग के तहत UIDAI ने ये फैसला किया है। ये सर्विस सिर्फ माई आधार पोर्टल पर मुफ्त दस्तयाब कराई जा रही है। ये सहूलत 15 मार्च 2023 से 14 जून 2023 तक दस्तयाब है। ताहम आधार मराकज़ के जरिए अपडेट करने के लिए 50 रुपए की फीस वसूल की जाती रहेगी। और नई दिल्ली में वाक़ई विज्ञान भवन में आज असरी तर्ज ज़िंदगी में मिलेट का इस्तेमाल के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ आयुर्वेद इस सेमिनार का इनेकाद कर रहा है। आयुष के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वजीर मुमलिकत बराए आयुष महेंद्र भाई भी सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में जवार और उनकी खुसूसियात पर बात होगी। इसके साथ हुकूमत की जानिब से इस सिमत में उठाए जाने वाले इक़दामात का भी जिक्र किया जाएगा। मिलेट्स के बारे में शऊर पैदा करने और असरी तर्ज ज़िंदगी में इसके इस्तेमाल के लिए सेमिनार मुनक़्क़िद किए जाते रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तवक्कुआती अजला के सरकारी स्कूलों के 68 SC/ST होनहार तलबा का एक ग्रुप आज से दिल्ली के 2 रोज़ा दौरे पर है। माली खानदगी के तहत इस दौरे का एहतमाम वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की रहनुमाई में किया गया है। ये ग्रुप 39 तलबा और 29 तालिबात पर मुश्तमिल है। तलबा के साथ साथ उनके असातिज़ा भी इस ग्रुप में शामिल हैं। तलबा आंध्र प्रदेश के 3 तवक्कुआती अजला विजयनगरम, विशाखापट्टनम और YSR और तमिलनाडु के 2 तवक्कुआती अजला वीरधवनगर और रामनाथपुरम से आए हुए हैं। अपने दौरे के दौरान तलबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे और पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, नेशनल वॉर मेमोरियल और अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा तलबा मालियाती खानदगी पर एक सेशन में शिरकत करेंगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दिल्ली में पार्टनरशिप एक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर सेहत स्टार्ट TB पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। 2025 तक मुल्क में TB के खात्मे का हदफ है और हुकूमत इस सिमत में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत एक बहुत बड़ी जमहूरियत है जिसकी खुसूसियात में एक तो आबादी है और दूसरी नौजवान की 60% आबादी। अगर ये दोनों ताकतें यकजा हो जाएं तो मुल्क किसी भी किस्म के चैलेंज पर काबू पाने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने ये बात बेंगलुरु में मुनक़्क़िदा एग्री यूनिफेस्ट में कही। कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आज कर्नाटक के कई हलकों के लिए टिकटों पर गौर ख्वास करेगी और इसे खत्म शक्ल देगी। कर्नाटक कानून साज असेंबली की 224 सीटों के लिए असेंबली इंतखाबात मई में होंगे। कर्नाटक कानून साज असेंबली की मियाद 24 मई 2023 को खत्म होगी। आसाम कानून साज असेंबली में बजट इजलास जारी है और आज वज़ीर ख़जाना अजंता नियोग 2023-24 का रियासती बजट पेश करेंगे। बजट इजलास 5 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसकी 14 नशिस्तें होंगी। रियासत के हर तबके को इस बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं।
اور کورونا کے بعد اب H3N2 وائرس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کی پیش نظر پڈوچیری میں 8ویں جماعت تک کے تمام اسکول آج سے 26 مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں۔ انفلوئنزا وائرس ایکویٹ ریسپیریٹری ڈسٹربنس سنڈروم ہے، جس کی وجہ سے بخار سے لے کر شدید نمونیا تک کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے 18 غیر ملکی بینکوں کو بھارتی روپے میں تجارت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ غیر ملکی بینک بھارتیوں میں ادائیگی کے لیے SVRA کے ذریعے لین دین کر سکیں گے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ بھاگوت کرشن راؤ کراٹ نے BJP کو سشیل کمار مودی کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ RBI سے اجازت ملنے کے بعد شراکت دار ممالک کے بینکوں کے ذریعے مجاز ڈیلروں یعنی بھارت میں بینکوں سے رابطہ کر کے SVRA قائم کیا جا سکتا ہے۔ کراٹ نے کہا کہ دستیاب عدد و شمار کے مطابق RBI کو 18 ممالک بوتسوانا، فجی، جرمنی، گیانا، اسرائیل، کینیا، ملیشیا، ماریشس، میانمار، نیوزی لینڈ، عمان، روس، سیشلز، سنگاپور، سری لنکا، تنزانیہ، یوگانڈا اور برطانیہ سے ترسیلات موصول ہوئی ہیں۔ 60 معاملات میں گھریلو اور غیر ملکی AD بینکوں کو SRVA کھولنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کراٹ نے اپنے جواب میں کہا کہ 18 ممالک میں سے روس نے ڈی ڈالرائزیشن کے جامع عمل کے لیے مقامی کرنسی میں تجارت کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اس خیال کی حمایت کی ہے۔ RBI نے جولائی 2022 میں SVRA شروع ہونے کا اعلان کیا تھا۔ کیا ہمارے ملک میں اسمارٹ فون کے لیے کسی نئے سیکیورٹی ٹیسٹنگ کا کوئی منصوبہ ہے؟ اور کیا یہ پہلے سے انسٹال کردہ ایپس پر بھی کام کرے گا؟ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو ضرور معلوم ہوں گے، کیونکہ رائٹرز کی ایک رپورٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت میں اسمارٹ فونز کی سیکیورٹی ٹیسٹنگ کا نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ رائٹرز کی اس خبر کا اسکرین شاٹ بھی انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہا ہے، لیکن آپ غور سے سنیں گے کہ ایسا کوئی بھی دعویٰ بالکل غلط اور گمراہ کن ہے۔ PIB فیکٹ چیک نے اس وائرل دعوے کی حقیقت کی جانچ کی ہے اور اسے منظر عام پر لائے ہیں۔ مرکزی وزیر راجیو چندر شیکھر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے رائٹرز نیوز کا لنک شیئر کیا ہے اور کیپشن میں لکھا ہے کہ کوئی سیکیورٹی ٹیسٹ یا کریک ڈاؤن نہیں ہے۔ بشم اس پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رپورٹ گمراہ کن ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے تو حکومت فوراً اس کا جواب دیتی ہے۔ اس کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم تک پہنچنے کا راستہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر بھی ہے 8799711259۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا @pib.gov.in۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عوامی مقامات پر صاف ستھرے بیت الخلاء کا نہ ہونا خواتین کے لیے ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر خواتین کو گھر سے باہر نکلتے وقت کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنا اچھا ہو اگر خواتین کو ہر گلی محلے اور ہر کونے میں صاف ستھرے بیت الخلاء مل جائیں۔ اس کے لیے تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کی سابق DC ہری چندنا دساری نے موبائل شی ٹوائلٹ کا آغاز کیا۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ کی سابق ضلع کلیکٹر دساری ہری چندنا نے خواتین کے مرکزی مسائل پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے عوامی زندگی میں روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اختراعی کام کیا ہے۔ خواتین کو درپیش عام مسائل کا جدید حل فراہم کرنے کے لیے ایک بس ڈیزائن کی ہے، جسے خواتین متعدد طریقوں سے استعمال کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک موبائل شی ٹوائلٹ ہے۔ اب خواتین کو اپنی ضروریات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ شی شوچالے کم خرچ میں تیار کیے گئے ہیں۔ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ہم نے مہیلاؤں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرتے دیکھا ہے۔ اب ہر وارڈ میں ایک ساروجنک شوچالے ہے، وہ بھی بالکل سوچھ، تاکہ مہیلائیں اپنی بیسک ضرورتوں کے کارن پیچھے نہ رہ جائیں۔ بسوں کو شوچالے میں اس لیے پریورتت کیا کیونکہ ان چھیتروں میں استھائی شوچالے پوری طرح ویوہاریہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اپیوگ اور رکھ رکھاو کے کئی مدے ہیں۔ اس لیے ہم نے پرانی بسوں کو
नया रूप देकर शौचालय में परिवर्तित किया। इस किस्म की बस बनाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दसारी चंदना जानती हैं कि जब एक खातून घर से बाहर जाती है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि माजी में जब वो हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रही थी तो उन्होंने खवातीन के लिए गुलाबी बैतुल खला बनवाकर भीड़ वाली जगहों पर रखवाया था। नारायणपेट, जो एक पसमानदा जिला के तौर पर जाना जाता है, यहाँ खवातीन को कहीं जाते हुए बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि यहाँ खवातीन के मसाइल के हवाले से कोई खास आगाही नहीं थी। इसके बाद हरी चंदना दसारी ने बैतुल खला का एक मॉडल तैयार किया। गोस्की नगर पालिका में बनाए गए मोबाइल टॉयलेट को नजीर मानते हुए अब रियासती हुकूमत ने रियासत की तमाम नगर पालिकाओं में इस तरह के बैतुल खला बनवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की जो हमने खबर ली है सफ़े अव्वल पर है और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस खबर को दिल्ली से शाये मुख्तलिफ अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। ये खबर है बोहराए अस्वद पर रूसी तैयारे के टकराने से अमरीकी ड्रोन तबाह हो गया है और अमरीका का सख्त एहतिजाज बताया जा रहा है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली खबर पर। अगली खबर है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की टॉप शटलर संधू पहले राउंड में ही बाहर हो गई हैं। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेज़बानी के लिए बोली में शामिल होगा मराकश भी। जी हाँ, मराकश इस बार 2030 की मेज़बानी जो होगी फीफा वर्ल्ड कप की, उसकी बोली में शामिल होने के लिए पूरी तरह से बखुशी जोश व खरोश के साथ इस वक्त तैयार है मराकश। और अब आइए नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है H3N2 के मामलों में तेज़ी से इजाफा बताया जा रहा है और OPD में फ्लू की तादाद के पेश नज़र डॉक्टरों का एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ और बातें भी डॉक्टर्स ने बताई हैं और कहा है कि बुखार की अलामत सर्दी लगना और जिस्म में दर्द का होना, बाज़ सूरतों में मुसलसल खांसी भी आती है जिससे मरीज़ इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा डॉक्टर्स का कहना है कि जब भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है कविता को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में समाअत अब 24 तारीख को बताई जा रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कमेटी BRS की सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तेलंगाना कानून साज कौंसिल की अरकान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो नाजरीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की ये सुर्खी है सिविल सर्विसेज की असल बुनियाद गुड गवर्नेंस है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये कहना है, ये उनका बयान है। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और नज़र डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। तोशा खाना मामलों में इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने राहत देते हुए आज सुबह 10 बजे तक पुलिस ऑपरेशंस पर रोक लगा दी है। अदालत ने जमा पार्क में जारी पुलिस की कार्रवाई को अगले हुक्म तक रोकने का हुक्म दिया है। इस मामले में आज सुबह 10 बजे समाअत होगी। वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी वारंट मनसूख कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अपील करने का हुक्म दिया है। वहीं अदालत ने पुलिस को माल रोड कैनाल पुल से 500 मीटर पीछे रहने की हिदायत दी है। जस्टिस तारिक सलीम ने समाअत के दौरान पुलिस को हिदायत दी कि शहर में पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, इसलिए शहर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वो अपना ऑपरेशन रोक दे। जबकि अदालत ने PTR कारकुनों की गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया।
काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस की टीम जमा पार्क पर मौजूद है, जहां उसे पीटीआई कारकुनों की जानिब से मुजाहिमत का सामना है। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पों में अब तक दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार और आम शहरी शामिल हैं। कोलंबिया के वसी इलाके में कोयले की कान में जोरदार धमाके के नतीजे में 11 अफराद की मौत और 10 अफराद लापता हो गए हैं। कोलंबिया के सदर गुस्ताओ पेट्रो ने कहा कि इमदादी कारकुन कान में फंसे अफराद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुकामी गवर्नर ने बताया कि धमाके कान में मीथेन गैस के जमा होने से हुआ है। धमाके के बाइस कान के दाखिली रास्ते पर बड़ी तादाद में मलबा भी जमा हो गया है और साथ ही जमीन नीचे की तरफ धंस गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ 100 से जायद राहत और बचाव कारकुनों के लिए मुतासरीन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। पेरू में समुद्री तूफान याकू ने तबाही मचा रखी है। तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुकामी बाशिंदों को कई मसाइल का सामना है। बारिश की वजह से सड़क मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में औसत से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। तूफान की वजह से अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। और अमेरिका को इन दिनों मौसम की खराबी का सामना है। वाशिंगटन में शदीद बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। बारिश के बायस दरियाए वर्जिन के करीब सड़क बह गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई है। हुक्काम ने जुनूबी हिस्से में कई सड़कें बंद कर दी हैं। इससे कबल शुमाली कैलिफोर्निया में दरियाए बजारू पर टूटने से आसपास के इलाके ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। और हंगरी में बुध को हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हुए। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि बुडापेस्ट की सड़कों पर 1000 से ज़ायद अफराद ने एहतजाज किया। ऑस्ट्रेलियाई हुक्मरानी के खिलाफ 1848 के इनकलाब की अलामत के तौर पर असातिज़ा और तलबा हीरोज़ स्क्वायर से शहर की तरफ 48 मीटर लंबा हंगरी के परचम के साथ मार्च किया। मुजाहिरीन ने ज़्यादा उजरत, असातिज़ा की कमी के हल और उनके हुकूक का मुतालबा किया और नारे लगाकर अपने गुस्से का भी इजहार किया। स्वीडन के वजीर आजम ओल्फ क्रिस्टरसन जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मन चांसलर ओलोफ शोल्स ने ओल्फ क्रिस्टरसन के दौरे पर कहा कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होना चाहिए। जर्मन चांसलर ने कहा कि हमारा मकसद इसे तेजी से मुकम्मल करना और स्वीडन को बहुत जल्द नाटो का रुकन बनाना है। स्वीडन के वजीर आजम ने कहा कि वो नाटो में जल्द शामिल होने के मुतमन्नी हैं। शाम के सदर बशारुल असद रूस के दौरे पर हैं। शामी सदर ने क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शामी सदर ने यूक्रेन में तनाज़े की सूरत हाल में अपनी हिमायत का इजहार किया। शामी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन में न्यू नाजियों से लड़ रहा है। साथ ही रूसी सदर ने रूसी मुसल्लह अफवाज के ताउन पर शामी सदर का शुक्रिया अदा किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम नताइज हासिल किए हैं, जिसकी वजह से समाजी, माशी और दाखिली सियासी सूरत हाल मुस्तहकम हो सकती है। और नेपाल की वजीर आजम पुष्प कमल दहल का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल PM नेपाल @ हैक हो गया है। उनके ट्विटर अकाउंट में उनकी प्रोफाइल की ब्लर का डिस्प्ले प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। अकाउंट का बायो में द NFT मार्केट प्लेस फॉर प्रो ट्रेडर्स लिखा गया है। वजीर आजम पुष्प कमल दहल की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 6,90,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और खेल की खबरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को विमेंस प्रीमियर लीग में आखिरकार
आखिरकार पहली जीत मिल गई है। कल खेले गए मैच में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। स्टार खिलाड़ियों से सजी स्मृति मंधाना की टीम को गुज़िश्ता 5 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ यूपी की 5 मैचों में ये तीसरी शिकस्त है। उसने अब तक 2 मैचों में जीत हासिल की है। कनिका आहूजा और ऋचा घोष ने आरसीबी की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस जीत के साथ ही आरसीबी ने अपना खाता खोल लिया है, लेकिन उसे टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए बाकी 2 मैच जीतने होंगे। इसके अलावा दीगर टीमों के नताइज पर भी इन्हिसार करना पड़ेगा। भारतीय हॉकी टीम ने बुध को FIH प्रो लीग मैच के दूसरे मरहले में पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलिया को 3 दिन में दूसरी बार शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर थीं। तजुर्बेकार गोलकीपर PR श्रीजेश ने शूटआउट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसे भारत ने 4-3 से जीता। बिरसा मुंडा स्टेडियम में अपनी मुसलसल चौथी जीत के साथ भारतीय टीम ने पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। भारत की जानिब से विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने मुकर्ररा वक्त में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नाथन एफॉर्म्स ने दोनों गोल किए। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।